Hello everyone. Today we will understand the structure of stamen, which is male reproductive part in the plant. This stamen consists two parts. One is anther and second one is the filament. This swollen region having bilobed structure. One lobe, second lobe. This bilobed structure is called anther or this long cylindrical thread-like structure is called filament. बच्चों, स्टेमन प्लांट में फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके दो हिस्से हैं. ऊपर वाला swollen region is called anther और long thread like cylindrical part is called filament. फिलामेंट का जो proximal end है that is attached with the thalamus. This is the proximal end and this is the distal end which is attached to the anther. When it is in single form it is called stamen, but when it is in groups it is called androecium. जब अकेला होता है तो उसे स्टेमन कहते हैं और जब ग्रुप्स में होता है तो उसे हम एंड्रोशियम कहते हैं. बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन का मेन पार्ट एंथर है. एंथर के अंदर मेल गैमीट की फॉर्मेशन होती है. तो आओ हम मेल गैमीट की फॉर्मेशन अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करें कि वो किस तरह से दिखती है. हमने पहले भी पढ़ा एंथर इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. एंथर हैविंग टू लोब, वन लोब, second lobe, and due to the presence of two lobe, anther is called bilobed. जब हम एंथर को कट करते हैं ट्रांसवर्सली तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है. जब हमने एंथर को ट्रांसवर्सली कट किया तो जब हमने इसको इस तरह से कट किया तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखा हमें. दिस स्ट्रक्चर हैविंग टू लोब बट in each lobe there is again two compartment. This compartment is called theca. One theca, two theca, one theca, two theca. There is two theca in one lobe. That is why anther is called dithecous. Anther is called dithecous.
There is 4 circular or bag-like structure present in the fourtheca. This structure is called microsporigia. Microsporigia. In plural it is called microsporigia and singular it is called microsporangium. बच्चों, this microsporangia is surrounded by 4 layers. अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा करके मैं बनाती हूँ so that we can understand different layers. This is the structure of young anther. Young anther having 4 microsporangia in each theca, and this microsporangia is surrounded by 4 layers. This is the one layer which is surrounded in 4 microsporangia. This layer is called epidermis. Outermost layer is called epidermis. Inside the epidermis there is another layer. Which is called endothecium. This is called endothecium. Inside the endothecium there is multi-layers. ये पूरे ही माइक्रोस्पोरेंजियम में इस तरह से ही स्प्रेड होगी. Multi-layer structure. This multi-layer structure is called middle layer. Inside the middle layer there is another layer which is called tapetum. This tapetum play a very important role in providing nourishment to the developing pollen grain. This is the tapetum. तो बच्चों, there is 4 layer surrounded in the microsporangia. Outermost layer is called epidermis, then endothecium, then middle layer, and innermost layer is called tapetum. Inside the microsporangium there is a tissues. This tissue is called sporogenous tissue. This tissue is called sporogenous tissue. तो ये स्ट्रक्चर है यंग एंथर का.
यंग एंथर में 4 लेयर पाई जाती हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों ओर 4 लेयर्स होती हैं। इसके अंदर के टिश्यू को हम स्पोरोजीनियस कहते हैं। यहाँ पे कनेक्टिव रीजन रहता है, कनेक्टिव, और इस तरह से दीज आर द माइक्रोस्पोरेंजिया। सिंगल को हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे और हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में ये 4 लेयर होंगी। उसके अंदर वाले स्ट्रक्चर को हम स्पोरोजीनियस स्ट्रक्चर कहेंगे। बच्चों, जो यंग एंथर का स्ट्रक्चर है वो अलग होता है और मैच्योर एंथर में अलग हो जाता है। यहाँ पे हम 4 कंपार्टमेंट देखते हैं यंग एंथर में, लेकिन मैच्योर एंथर में ये 4 ना होकर 2 कंपार्टमेंट्स में या सैक, पोलन सैक कहते हैं, उनमें चेंज हो जाता है। यंग एंथर में पोलन ग्रेन डेवलप नहीं हुआ होता है। जितना भी टिश्यू होता है वो स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है। यंग एंथर में ही 4 लेयर्स पाई जाती हैं, लेकिन मैच्योर एंथर में 4 लेयर्स नहीं होती हैं। मैच्योर एंथर में 2 लेयर्स, मिडल लेयर एंड टेपिटम, यूज्ड हो जाती हैं। यहाँ पे बचती हैं एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम। ये दोनों ही लेयर्स एंथर के फटने में हेल्प करती हैं एंड इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो देयर इज ओनली 2 लेयर्स प्रेजेंट इन द मैच्योर एंथर। मैच्योर एंथर में स्पोरोजीनियस टिश्यू नहीं होता है। मैच्योर एंथर में पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। तो ये आज हमने एंथर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और उसमें किस तरह से एंथर को काटने पर उसके अंदर के स्ट्रक्चर को हमने स्टडी किया, उसके डिफरेंट लेयर्स को स्टडी किया और उसके अंदर क्या क्या टिश्यूज पाया जाता है उसको स्टडी किया। बच्चों, ये जो 4 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम। टेपिटम प्रोवाइड नरिशमेंट, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये लेयर प्रोवाइड करती हैं प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिसेंस टू एंथर टू रिलीज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के फटने में हेल्प करती हैं। क्लियर? हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को अंडरस्टैंड करेंगे। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। थैंक यू एवरीवन।